So as part of the last lecture, we have covered basically the browser object model and document object model. ठीक है, तो आपको इन दोनों concepts का अच्छी तरीके से idea है. As part of the document object model, you very well know that how to access elements within the DOM. And we have discussed in the last lecture 5 different ways of accessing the elements. 1, 2, 3, 4, and 5. First one was the get element by ID. Second was get elements by class name, CN. And third was the get elements by tag name. Okay. Or fourth way was the CSS way. And as part of this method, we discussed 2 approaches. First was the query selector, and second was the query selector all. Okay. And fifth way was the HTML collection way, basically document.forms or document.images, which returns the collection of the forms or images or whatever element you're trying to access. Okay? These are the 5 different ways we have accessed the elements. And then how to set and get the content from the elements. We covered inner HTML and inner text properties. And then for getting and setting the value within the HTML form input elements, we covered the value property. You can use the value property to get the content from the HTML form input element, and you can use the same property for setting the content as well. Then to access the inline styles, we use the style property, style.color or style.background color or whatever property you specify. And then basically we discuss the category of events related to DOM, which included the mouse events, keyboard events, for example, drag and drop API events, and then form events. Form events को हमने काफ़ी डिटेल में देखा था, ठीक है, जो input elements से related events हैं, because they are used in the context of validation and other applications. So these are the topics we discussed in the last lecture, and before that lecture we discussed the browser object model and basics of the JavaScript. So this is all we have covered so far. So in today's lecture we are going to start with the DOM navigation and manipulation. So to understand in today's lecture you must have a knowledge of the DOM, which we covered in the last lecture. Okay? So navigation basically is the term which is appended at the end of the DOM, the word DOM. So navigation or traversing, these are the 2 of synonyms or similar names. ठीक है, तो आप navigation भी कह सकते हैं, then you can say the traversing as well. So in this basically in this concept, navigation or traversing, for example, if you are at any certain element within your HTML, for example, inside the div you have got the unordered list, and inside the unordered list you have got 3 list items, and at this point you are at the first list item within your HTML. You might have accessed it by tag name or class name or ID, whatever way you have accessed it, but currently you are at this first list item. Then from this list item you can move inside your DOM tree. You can move up to other list items, for example, second list item, third list item, or from this list item you can move to its parent, unordered list, UL element, or to grandparent, for example, div element. So this is the process of navigation. ठीक है, navigation क्या है? Navigation में आप किसी भी element के अंदर अगर अपने HTML के अंदर खड़े होंगे तो उससे आप move कर सकते हैं at the similar level or in the context of the sibling. For example, similar level sibling है ना, जिसमें तीनों list items एक दूसरे के siblings हैं. ठीक है, then you can move towards children as well. अगर list item के अंदर कोई और children है उसके अंदर भी move कर सकते हैं, for example nested list के context में, या फिर इसके parent की तरफ move कर सकते हैं, unordered list या div की तरफ. So this is the process of navigation or traversing of the DOM. ठीक है, and to understand basically this concept you have to understand the node relationships. आपको node relationships का पता होना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि node relationships का अगर आइडिया नहीं है तो आप navigate या traverse नहीं कर सकते. And second part of today's lecture is the DOM manipulation. And similar to the manipulation,
या इसका सिनोनिम जो है दैट इज द वर्ड एडिटिंग। तो नेविगेशन में आप डॉम को नेविगेट कर रहे थे यूजिंग नोड रिलेशनशिप्स, जबकि डॉम मैनिपुलेशन में आप डॉम को मैनिपुलेट करेंगे या एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट करेंगे मीनिंग दैट जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको उनमें किसी नए एलिमेंट को ऐड कर देंगे, या एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, या किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे। सो टेकिंग द सेम एग्जांपल अगेन दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डॉम नेविगेशन. So for example, in these list items, 3 list items, you might want to add the 4th list item at the runtime using JavaScript, or you want to remove the 3rd list item at the runtime using JavaScript. So this is basically the process of editing or manipulation. Or you want to replace the text of the 3rd list item with some other text. So this is also the process of manipulation. So in these basically processes, you are either adding new list item or removing existing list item, or adding the content of some existing list item. So this is basically the process of manipulation or editing. Okay, and this is very important in the sense that basically not all the time you access elements by these methods, जो कि हमने last lecture में discuss किए थे, these 5 methods. Not all the time you access elements by these approaches. For example, if you are developing a web crawler, you might have to use the node relationships. ठीक है, और भी सिनेरियोज इस तरह हो सकते हैं जिसमें आप नोड रिलेशनशिप्स को यूज़ करें। तो इस कंटेक्स्ट में फिर आपको नोड रिलेशनशिप्स और मैनिपुलेशन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. So this is a summary of today's lecture. First of all, within the DOM navigation category, we are going to understand the node relationships. And then using these relationships, we are going to traverse. Traverse what? Ancestors, descendants, and siblings. Basically, these are the node relationships. Okay? In the second part of the lecture, we are going to understand the DOM manipulation. And what does the DOM manipulation means? It means the addition of new nodes, removal of the existing nodes, and replacing of the existing nodes with some new nodes. Okay? So these are the topics of today's lecture. So let's start with the lecture. So this is a document object model that you have seen in the last lecture, and it is not that difficult for you to understand. So as part of the DOM basically model, we understood number of a different type of nodes. For example, element nodes, attribute nodes, text nodes, and comment nodes. So as we know that DOM is basically a hierarchy of nodes. ठीक है, आपके पास एक ट्री है जिसके अंदर नोड जो हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की. ठीक है, तो उस हायरार्की के अंदर देयर एग्जिस्ट्स रिलेशनशिप अमंग द नोड्स. ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी? फॉर एग्जांपल, यू कैन आल्सो रिलेट दीज रिलेशनशिप्स टू योर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स. अगर आप रियल लाइफ के अंदर भी इसको रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप फैमिली ट्री जनरेट करें जो कि डॉम ट्री की तरह का ही ट्री होगा, तो उसमें पेरेंट आपके पास होगा, चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, सिबलिंग का रिलेशनशिप होगा. ठीक है, अगर उसको आप डॉम नोड से कंटेक्स्ट में देखें तो आपके पास किसी भी नोड के रिस्पेक्ट से, जिस तरह हमने लिस्ट आइटम देखा था, उसका एक पेरेंट नोड हो सकता है, फिर उसके अंदर उसके कुछ चाइल्ड नोड हो सकते हैं, फिर उसके कुछ सिबलिंग नोड हो सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक सेट ऑफ 3 रिलेशनशिप्स. ठीक है, तो जो सबसे टॉप नोड होता है डॉम के अंदर, दैट इज बेसिकली द रूट नोड विच इज द HTML. ठीक है, फिर HTML के अंदर आपके पास चाइल्ड नोड होते हैं विच आर द हेड एंड बॉडी. फिर हेड के अंदर आपके पास टाइटल होता है विच इज द चाइल्ड ऑफ द हेड. ठीक है, तो इस तरह चीज़ें डिस्क्राइब होती है. और फिर बॉडी टैग के अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मल्टी कॉलम लेआउट है जिसमें 3 सेक्शंस हैं, तो आपके पास जो तीनों सेक्शन टैग्स हैं दे आर सिबलिंग ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल. लाइक इन द रियल लाइफ वी हैव गॉट सिबलिंग इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ठीक है, तो इन नोड रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए अगर हम HTML को मैप करें इन रिलेशनशिप पे, तो आपके पास एक सैम्पल HTML नज़र आ रही है लेफ्ट साइड. एंड इनसाइड दिस HTML देयर इज अ हेड टैग, within the head tag there is a title tag, and then there is a body tag within the HTML, and inside the body we have got H1 and P elements. ठीक है, on the right side we have got the pictorial representation of the node relationships. So starting from the root element which is the HTML, what are the basically children of the HTML? They are the first children is the head and second is the body. तो यहाँ से आप अगर देखें, first child is the head element head, and second child of the root element is the basically which is also a last child is the body. ठीक है,
and with respect to each other, these head and body elements, because they are the same level within the HTML, they are sibling of each other. With respect to the head, basically body is the next sibling, and with respect to the body, basically head is the previous sibling. Okay, and with respect to each of these head and body, HTML is the parent node of these elements. ठीक है, फिर इसको अगर फर्दर आप एक्सपेंड करें इस ट्री को, तो हेड के अंदर आप बना सकते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड बेसिकली इज द टाइटल, ठीक है, विच इज ऑल्सो लास्ट चाइल्ड एज वेल. बॉडी के अंदर अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो फर्स्ट चाइल्ड इज द H1 एंड लास्ट चाइल्ड इज द P. तो अगर फर्दर करेंगे तो बेसिकली अगर पेरेंट के रिस्पेक्ट से तो H1 का अगर बैक लिंक आप करेंगे टुवर्ड्स बॉडी तो पेरेंट इसको कर देंगे, टाइटल को बैक लिंक करेंगे तो हेड बेसिकली इसका पेरेंट है. तो इस तरह आप किसी भी डॉम ट्री का बेसिकली डॉम जो आपके पास ट्री है उसके अंदर रिलेशनशिप्स को मैप कर सकते हैं. ठीक है, एंड दीज रिलेशनशिप्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर द डॉम नेविगेशन इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. So DOM traversing या DOM navigation, as part of this concept, there are a set of properties available in the plain JavaScript. ठीक है, so under the category of ancestors, we have got a property known as parent node. So with respect to any of the element, for example, like I have drawn in the first slide as well, here I'm going to draw it again. So inside the div we have got another list. Inside this list item we have got the inside this unordered list we have got this list item. Okay? And with respect to this list item, basically if you call this property parent node, then it will return the UL unordered list. ठीक है, अगर with respect to UL आप parent return करेंगे then it will return the div. So this parent property, basically parent node property, will return only the immediate parent unless you chain it. Chain it in the sense, chaining में किस तरह कह रहा हूँ, for example आपने लिस्ट आइटम को गेट किया बाय आईडी में, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल के अंदर ए के अंदर सेव कर दिया डॉक्यूमेंट, इसके अंदर कोई आईडी स्पेसिफाई कर दी, फॉर एग्जांपल L1, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया L1. अब आपके पास ए के अंदर कंट्रोल आ गया लिस्ट आइटम का. अब आप ये करेंगे ए डॉट पेरेंट नोड, इसको आप किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे कंट्रोल को, तो बी होगा वेरिएबल, तो इसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा यूएल का. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और चेंज कर देंगे, माने फॉर एग्जांपल डॉट पेरेंट नोड अगेन कर देंगे, देन इट विल रिटर्न द div इनसाइड दिस पी. सो दिस इज व्हाट आई रेफर टू चेनिंग. ठीक है, तो बेसिकली चेंज करते चले जाएंगे तो वो मूव करता चला जाएगा, लेकिन अगर चेनिंग नहीं करेंगे तो जस्ट इमीडिएट पेरेंट को रिटर्न करें, विच इज द इमीडिएट पेरेंट. ठीक है, विद इन द कैटेगरी ऑफ डिसेंडेंट्स यू हैव गॉट टू कैटेगरी ऑफ properties. First three elements, basically first three जो properties हैं, this is in the first category, और जो last three properties हैं, they are in the second category. In the first category of properties, we have got first child, last child and child nodes. First child will return the first child. अच्छा, अब इसमें जब आपके पास HTML इस फॉर्मेट में होता है ना, जिसमें div हो और UL हो और list item हो, तो इसमें एम्प्टी नोड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिव के बाद जो स्पेस एम्प्टी स्पेस है ना, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड. इसके अलावा जो आप अगर आपने कमेंट्स ऐड किए हैं विद इन योर HTML, जो कि आपको पता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैश के साथ आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, सो दीज कमेंट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज नोड्स. ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. सो बेसिकली इफ यू रिटर्न द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दिस डिव, इट विल बी एम्प्टी नोड, दिस वन. इफ यू मूव दिस UL एलिमेंट टू द जस्ट आफ्टर द div, तो फिर आपको फर्स्ट चाइल्ड जो है वो UL रिटर्न करेगा. अगर आपने मल्टी लाइंस में अपने टैग्स को प्लेस किया हुआ है, देन बेसिकली इट आल्सो कंसिडर्ड एम्प्टी टैग्स एज नोड्स. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी चीज़. तो फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट, लास्ट चाइल्ड, और चाइल्ड नोड जो है इट विल रिटर्न सक्सेसिव एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो नोड नंबर है, दिस इज एन इंडेक्स. ठीक है, 0 करेंगे तो ये फर्स्ट चाइल्ड को रिटर्न कर देगा किसी भी एलिमेंट के, 1 करेंगे तो सेकंड चाइल्ड को कर देगा, 2 करेंगे तो थर्ड चाइल्ड को कर देगा, और अगर इसमें 3 ही चिल्ड्रन हैं तो 2 बेसिकली लास्ट चाइल्ड को भी रेफर करेगा. ठीक है, while the second category of elements, basically properties, first child element, last child element, children,
तो इसके अंदर एक एडिशनल वर्ड है, दैट इज एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, एक एडिशनल वर्ड है ना, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस। तो ये जो लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज हैं, दे ओनली रिटर्न द एलिमेंट नोड्स, दे इग्नोर द वाइट स्पेसिस। फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट नोड्स हैं, वाइट स्पेसिस को भी ये नोड्स कंसिडर करते हैं, और कमेंट नोड्स, दे इग्नोर बोथ कमेंट नोड्स एंड द एम्प्टी नोड्स, जो कि फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और चाइल्ड नोड्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड लास्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, all of these three properties basically they consider only the element nodes. So element nodes कौन से होते हैं? For example आपके पास div है, paragraph है, HTML है, table है, tr है, td है, ठीक है, ये element nodes. So if you have to access only element nodes, ignoring the comment and text nodes, then you have to use the last three properties. ठीक है, और फिर sibling जो category है, इसमें भी आपके पास two category of properties. First two basically properties and last two properties. First two properties next sibling and previous sibling. ठीक है, it also considered empty nodes. ठीक है, और next element sibling और last और previous element sibling, इसमें additional word आपके पास element है। तो ये additional word basically in category of properties में भी वही difference है जो कि descendant से context में है, कि नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग जो है, जो एम्प्टी नोड्स और कमेंट नोड्स को भी कंसिडर करते हैं, जबकि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग ओनली कंसिडर द एलिमेंट नोड्स, इग्नोरिंग द एम्प्टी स्पेसेस एंड टेक्स्ट कमेंट नोड्स। ठीक है, so hopefully you got basic idea about the set of properties available in the plain JavaScript for DOM class. So अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू start looking at the examples of each of these properties so you can get a better idea. ठीक है, तो let's start with the examples. So this example is about the parent node property. ठीक है, इसका syntax क्या है? child node dot parent node, meaning that first you have to get the control of the child node जिसका आपने parent get करना है। ठीक है, so चाइल्ड नोड पेरेंट किस कंट्रोल किस तरह गेट करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या कोई भी आप नोड एक्सेसिंग मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। जो नीचे एग्जांपल में आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नजर आ रही है, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके पास दो लिस्ट आइटम है। फर्स्ट लिस्ट आइटम हैज गॉट द आईडी ऑफ माई एल आई। ठीक है, फिर नीचे जाए तो आपके पास एक बटन है, उसके अंदर एक इवेंट है ऑन क्लिक और उसके क्रॉस एक फंक्शन कॉल होगा, माई फंक्शन विच इज हियर। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट सेज वॉर एक्स वेरिएबल एक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई एल आई। इसका कंट्रोल उसने गेट किया माई एल आई का, इस आइटम का डॉट पेरेंट नोड डॉट नोड नेम, तो पेरेंट नोड ऑफ दिस एल आई और उसका नोड नेम रिटर्न करें। ठीक है, और उसको वेरिएबल एक्स में सेव कर दो, और फिर उस वेरिएबल एक्स को सेट कर दिया आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, और डेमो क्या है? दिस इज एन एम्प्टी पैराग्राफ। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन इट विल रिटर्न द नेम ऑफ द पेरेंट नोड, और पेरेंट नोड क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, इसका पेरेंट क्या है? यूएल है। तो राइट साइड पे आप देखते हैं आपको पेरेंट हाईलाइटेड में यूएल नजर आ रहा है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यूज द पेरेंट नोड। तो यहाँ पे अगर आप ये कर देते हैं ना, डॉट पेरेंट नोड, फिर करते हैं डॉट पेरेंट नोड, फिर आप लिखते हैं डॉट नोड नेम, तो फिर ये बेसिकली रिटर्न करता, क्योंकि यूएल का पेरेंट बॉडी है तो यहाँ पे आपको ये बॉडी रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ बेसिकली चेनिंग वर्क्स। मैं आपको चेनिंग कह रहा था ना, तो आप ये चेनिंग कर रहे हैं, आपने पेरेंट नोड डॉट पेरेंट नोड किया, अगर और पेरेंट करेंगे तो फिर ये बॉडी का भी जो HTML एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू परफॉर्म द चेनिंग विद इन दीज प्रॉपर्टीज। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। ठीक है, देन आपके पास एंसेस्टर की कैटेगरी में तो एक ही प्रॉपर्टी थी, पेरेंट नोड। विद इन द डिसेंडेंट्स कैटेगरी यू हैव गॉट फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसकी जो जब आपने चाइल्ड एक्सेस करने हैं तो आपने पेरेंट का रेफरेंस देना है, एज मेंशन इन द सिंटैक्स, पेरेंट नोड डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट का कंट्रोल गेट करेंगे और उसका फर्स्ट चाइल्ड।
बट हियर सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको पहले बताया था कि इट आल्सो कंसिडर्ड एम्प्टी स्पेस एज नोड्स। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल। आपके पास एक नीचे div है और div के आईडी है मेन। इसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं h1 एंड p विद द आईडीज टाइटल एंड हिंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो पैराग्राफ्स हैं विच आर एम्प्टी पैराग्राफ विद द आईडी fc एंड lc, and within the script tag first statement says that document dot get element by id main, और इसका कंट्रोल सेव कर दो विद इन दिस वेरिएबल मेन। अब ये बेसिकली मेन आईडी किसकी है, इस ये div की मेन आईडी, ठीक है। so it will save the control of the div in this variable main. Then in the next two statements we have accessed main dot first child dot node name and main dot first child dot last child dot node name, और दोनों के नोड नेम्स हमने जो एम्प्टी पैराग्राफ्स थे FC और LC इनके अंदर सेट कर दिए, ठीक है। व्हेन यू सी ऑन द राइट साइड आप इसकी आउटपुट देखें, इट कंटेन्स हैश टेक्स्ट एंड हैश टेक्स्ट। व्हाट इज दिस बेसिकली में, तो मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ना, इसको भी ये प्रॉपर्टीज नोड्स कंसिडर करती हैं। तो आपके पास जो div है, div के बाद ये एक एम्प्टी स्पेस है ड्यू टू लाइन ब्रेक, फिर नेक्स्ट लाइन पे आपके पास h1 का एलिमेंट है। सो दिस एम्प्टी स्पेस इज कंसिडर्ड एज अ नोड फर्स्ट। बेसिकली ये फर्स्ट चाइल्ड है। अगर आप यहाँ पे इस h1 को उठा के बिल्कुल इसके बराबर ले आए इन द सेम लाइन, div के साथ ले आएंगे तो ये h1 रिटर्न करेगा। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ब्रेक है और एम्प्टी स्पेस है, तो इट इज कंसिडर्ड बेसिकली दिस एम्प्टी स्पेस एज अ फर्स्ट चाइल्ड। और इसी तरह जो आपके पास पैराग्राफ एलिमेंट है उसके बाद स्पेस है, लाइन ब्रेक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द div टैग, तो इस एम्प्टी स्पेस को उसने लास्ट चाइल्ड कंसिडर किया, दैट्स व्हाई इट हैज शोन हैश टेक्स्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा एक अनएक्सपेक्टेड या एक वेरिड बिहेवियर है जो कि आप लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली द फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टीज है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें जो लास्ट चाइल्ड होगा वो div से बिल्कुल पहले नहीं होगा, जो जहाँ div क्लोज हो रही है। ये लाइन ब्रेक है ना, ये जो पैराग्राफ के क्लोजिंग टैग के बाद स्पेस एम्प्टी स्पेस है, इसको लास्ट चाइल्ड कंसिडर करेगा। अगर आप ये जो क्लोजिंग div का टैग है इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे ले आए ना पैराग्राफ के क्लोजिंग टैग के साथ, तो लास्ट चाइल्ड जो है फिर वो ये पैराग्राफ को रिटर्न करेगा। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ जो लास्ट चाइल्ड होगा वो जहाँ div क्लोज हो रहा है बिल्कुल उसके पीछे नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली उसके पीछे। इमीडिएटली तो ये तो आपके पास स्क्रीनशॉट है ना, आपके पास वेब जो मेरा रेंडर्ड जहाँ पे मैंने HTML प्लेस किया हुआ है एडिटर के अंदर, उसके अंदर तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे है ना। ठीक है सर, टैग, हाँ, ठीक हो। उससे पहले तो एम्प्टी स्पेस है ही नहीं। तो अगर मल्टीपल एम्प्टी स्पेसेस हो ना, फॉर एग्जांपल 2-3 एम्प्टी स्पेसेस हैं, उस कंटेक्स्ट में भी मेरे ख्याल में ये उसको सिंगल नोड ही कंसिडर करता है। हाँ, तो अगर आप उससे पहले की बात कर रहे हैं तो वो मेरे एडिटर में बेसिकली लेफ्ट साइड पे कोई स्पेस नहीं थी div से पहले, ये तो मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप करके प्लेस किया, दैट्स व्हाई आपको स्पेस नजर आ रही है। लेकिन जो लाइन ब्रेक है बेसिकली दैट इज एम्प्टी नोड, तो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको कंसिडर करें। ठीक है सर, ठीक है ना। जो चाइल्ड नोड्स है ना, अब चाइल्ड नोड्स को आप कह सकते हैं दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड, कि फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को आपको सिर्फ पहले और आखिरी चाइल्ड नोड रिटर्न करेगा। चाइल्ड नोड जो है इट इज अ नोड लिस्ट, तो ये बेसिकली नोड लिस्ट है। नोड लिस्ट मीन्स दैट इट रिटर्न्स ऑल द चाइल्ड नोड्स। सो हाउ यू कैन एक्सेस एनी पर्टिकुलर चाइल्ड विद इन द लिस्ट, बाय यूजिंग द इंडेक्स, वेरी मच लाइक यू यूज द इंडेक्स इन द अरेज, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास आई हैव केप्ट द HTML सेम एज इन द लास्ट स्लाइड जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया। इसमें भी आपके पास एक मेन div है विद आईडी मेन, और आपके पास h1 और p के टैग्स हैं, और उसके बाद आपके पास 3 पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर आपने मेन का कंट्रोल गेट किया और उसको इसके अंदर सेव कर दिया, वेरी मच लाइक द लास्ट स्लाइड। लेकिन उसके बाद जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें आपने मेन डॉट चाइल्ड नोड्स ऑफ 0, चाइल्ड नोड्स ऑफ 1 एंड चाइल्ड नोड्स ऑफ 2, इन तीनों के बेसिकली नोड नेम रिटर्न किए, ठीक है। अब चाइल्ड नोड्स ऑफ 0 वही है जो कि फर्स्ट चाइल्ड है, so that is on the right side you can see text node which is empty space। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड है
child nodes of 1 which is the second child, that is basically the h1 element. तो इसमें देखें जितनी भी एम्प्टी स्पेस थी उसको उसने एक सिंगल नोड ही कंसिडर किया. h1 से पहले आपको स्पेस नजर आ रही है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नोड अलॉन्ग विद द लाइन ब्रेक. तो अगर मैं चाइल्ड नोड ऑफ 1 करता और मल्टीपल स्पेसेस को वो डिफरेंट नोड्स कंसिडर करता, तो फिर चाइल्ड नोड्स ऑफ 1 को भी वो टेक्स्ट नोड रिटर्न करता. तो दिस इज अ बिट मोर डिस्क्रिप्टिव आंसर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड इन द लास्ट स्लाइड. ठीक है, तो इसमें जो चाइल्ड नोड्स ऑफ 1 है इसमें इसने h1 को रिटर्न किया, h1 एलिमेंट. फिर चाइल्ड नोड्स ऑफ 2 को बेसिकली h1 के बाद अगेन आपके पास स्पेस है, तो इसको भी उसने टेक्स्ट नोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आपके पास राइट साइड पे टेक्स्ट नोड है. ठीक है, तो इसी तरह अगर आप चाइल्ड नोड ऑफ 3 करेंगे तो पैराग्राफ को रिटर्न करेगा, चाइल्ड नोड ऑफ 4 करेंगे तो टेक्स्ट नोड को रिटर्न करेगा, चाइल्ड नोड ऑफ 5 करेंगे तो बेसिकली वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एम्प्टी नोड रिटर्न करेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस कलेक्शन वर्क्स. तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एक डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल है इस नोड लिस्ट की. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक HTML है जिसमें बॉडी टैग है, स्टार्टिंग बॉडी टैग. उसके बाद आपके पास कमेंट नोड है, ये कमेंट है, HTML कमेंट. फिर आपके पास पैराग्राफ है, फिर लाइन ब्रेक है, फिर बटन है, फिर लाइन ब्रेक है, फिर पैराग्राफ है, फिर लाइन ब्रेक है, फिर पैराग्राफ है, फिर लाइन ब्रेक है, फिर स्क्रिप्ट का टैग है, फिर उसके बाद नीचे बॉडी का टैग, क्लोजिंग टैग है लाइन ब्रेक के बाद. ठीक है, अब हमने इस फंक्शन के अंदर जो कि स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया है, इसके अंदर हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स. अब हमने ये नोड्स को एक्सेस किया जो कि हमने पहले पढ़े हैं ना, जो कि कलेक्शन को रिटर्न करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स. तो ये बॉडी के जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं सबको गेट करेगा और उसकी नोड लिस्ट जो है वो सी में सेव कर देगा, वेरिएबल सी में. ठीक है, फिर हमने नीचे एक लूप राइट किया फॉर i इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, i इज लेस देन c डॉट लेंथ i प्लस प्लस. और फिर हमने टेक्स्ट एक वेरिएबल ऊपर स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके अंदर कंकैटिनेट किया टेक्स्ट प्लस c ऑफ i डॉट नोड नेम. तो 1 बाय 1 जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं उनको एक्सेस करो यूजिंग लूप और उनके नोड नेम को अपेंड करते जाओ इन दिस टेक्स्ट, इन दिस स्ट्रिंग विद द लाइन ब्रेक br टैग. ठीक है, लाइन ब्रेक देता रहेगा वो. तो राइट साइड पे आपको इसकी आउटपुट नजर आ रही है. और उसके बाद इस टेक्स्ट को सेट कर दो इन दिस पैराग्राफ यूजिंग इनर HTML विच इज बेसिकली एन एम्प्टी पैराग्राफ. ठीक है, तो राइट साइड पे आपको इसकी आउटपुट नजर आ रही है. सबसे पहला बेसिकली जो चाइल्ड है दैट इज दिस कमेंट नोड, दैट्स वाई दिस हैश कमेंट. फिर उसके बाद जो आपके पास एम्प्टी स्पेस है इसको टेक्स्ट नोड उसने कंसिडर किया, दिस वन. फिर उसके बाद पैराग्राफ है, क्लिक द बटन गेट इन्फो, पैराग्राफ नोड. फिर लाइन ब्रेक है, फिर टेक्स्ट, फिर बटन है, फिर लाइन ब्रेक टेक्स्ट, फिर पैराग्राफ, फिर लाइन ब्रेक, फिर पैराग्राफ, फिर लाइन ब्रेक, फिर स्क्रिप्ट का टैग. सो नाउ वी हैव रीच्ड हियर. यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट के टैग के बाद नीचे मैंने वो क्रॉप कर दिया, लेकिन वहाँ पे फिर लाइन ब्रेक है और फिर बॉडी का टैग है. तो लाइन ब्रेक और फिर उसके बाद बॉडी का टैग है, तो दैट्स लिस्ट ऑफ चाइल्ड नोड्स एंड हियर. ठीक है, तो इस तरह बेसिकली आपको चाइल्ड नोड रिटर्न करते हैं. तो ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड और फिर चिल्ड्रन, ये तीनों बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर एग्जैक्ट यू कैन से द एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट, लास्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड नोड्स, बट एक्सक्लूडिंग और इग्नोरिंग द कमेंट नोड्स एंड द टेक्स्ट नोड्स. बस इसमें ये डिफरेंस है. अदरवाइज ये जो सिर्फ एलिमेंट्स को कंसिडर करता है एज द वर्ड एलिमेंट सेज इनसाइड द प्रॉपर्टी नेम, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड. ठीक है, और इसमें ये जो थ्योरी है ना, इसके अंदर यही चीज़ लिखी हुई है, या आपने खुद इसको रीड करना है. ठीक है, सेकंड बुलेट पॉइंट के एंड में देखें, इग्नोर्स टेक्स्ट एंड कमेंट नोड्स, दिस इज द मेन डिफरेंस. अदरवाइज सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स स्ट्रेट अवे. एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, आपके पास HTML वही है जो कि आपने लास्ट स्लाइड में देखी थी. div with id main, h1 and paragraph are the children of the day. और नीचे भी आपने मेन का कंट्रोल गेट किया इन द स्क्रिप्ट पार्ट, लेकिन यहाँ पे आपने मेन डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट नोड नेम लिखा है और यहाँ पे लिखा है मेन डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट नोड नेम. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस विजिबल होगा. ठीक है, सो ऑन द राइट साइड यू कैन सी इट रिटर्न्स द h1 and p elements. Note the hash text hash text, which was the case in the context of the first child and last child. ठीक है,
तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, H1, इग्नोर्स द टेक्स्ट नोड. लास्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, पैराग्राफ एलिमेंट. ठीक है, तो ये इसको रिटर्न करके इसका नेम, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न H1 and P. इसी तरह चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो ये HTML कलेक्शन रिटर्न करता है. ठीक है, जबकि जो आपका चाइल्ड नोड्स की प्रॉपर्टी है वो नोड लिस्ट रिटर्न करती है. तो ये जावास्क्रिप्ट का एक मैकेनिज्म है एट द बैक एंड, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस और कमेंट नोड्स को भी कंसिडर करते हैं, इसलिए नोड लिस्ट. इसमें सिर्फ HTML एलिमेंट्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज HTML कलेक्शन. ठीक है, सो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट वे ऑफ हैंडलिंग द आउटपुट. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute. तो नीचे एग्जांपल है, इसको आपने इन द मीन टाइम देखा होगा. इसमें वही HTML है आपके पास. ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम में देखी थी. स्क्रिप्ट में भी वही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, सिमिलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जस्ट विद द बिट ऑफ difference that here we are referring towards main dot children of 0 and main dot children of 1, which is basically the first two children. तो इसमें क्योंकि आपके पास div के अंदर 2 ही चिल्ड्रन है, तो it will return the H1 and P. ठीक है, अगर इसके बाद कोई और चिल्ड्रन होता तो फिर सिनेरियो डिफरेंस हो जाता. तो ये चिल्ड्रन इज द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द चाइल्ड नोड्स. ठीक है, तो इसमें आपने इसको होपफुली समझिए. इसी तरह आपके पास अब आपने एंसेस्टर भी देख लिए, डिसेंडेंट भी देख लिए. अब आपके पास सिबलिंग की कैटेगरी आ गई. प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग, ये भी बेसिकली इस तरह ही वर्क करते हैं जिस तरह फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड करते थे, मीनिंग दैट दे कंसिडर एम्प्टी स्पेस एज टेक्स्ट नोड एंड कमेंट नोड एज वेल. ठीक है, लेकिन ये सिबलिंग को रिटर्न करते हैं, मीनिंग दैट एलिमेंट्स विच आर एट द सेम लेवल. तो इसमें जब आप सिंटैक्स को देखेंगे, सिंटैक्स में आप कर रहे हैं सिबलिंग नोड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग. इसमें आपको पेरेंट का कंट्रोल गेट नहीं करना, बल्कि ऐसे नोड का कंट्रोल गेट करना है जिसका आपने सिबलिंग गेट करना है. ठीक है, तो HTML तो आपके पास वही है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखी है. जस्ट टू गेट योर बेटर आइडिया, अगर HTML चेंज करूँगा तो यू माइट हैव टू री अंडरस्टैंड द HTML. ठीक है, और स्क्रिप्ट पार्ट में आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं, इट सेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टाइटल. टाइटल किसकी आईडी है, टाइटल आईडी है H1 एलिमेंट. ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना. उसके बाद टाइटल डॉट प्रीवियस सिबलिंग डॉट नोड नेम. अब इसका प्रीवियस सिबलिंग ये एम्प्टी स्पेस है विच इज जस्ट आफ्टर द div. ठीक है, और टाइटल डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डॉट नोड नेम, नेक्स्ट सिबलिंग इज द एम्प्टी स्पेस विच इज जस्ट आफ्टर द H1 टैग. इसलिए राइट साइड पे आप देखें, इसने दोनों टेक्स्ट नोड्स को रिटर्न किए. अदरवाइज अगर आप प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग या नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग तो कोई नहीं है H1 का, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग इसका P है. जब आप P के रेफरेंस से देखेंगे तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कोई नहीं है, लेकिन प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग H1 है. ठीक है, तो इसी तरह इन दोनों की हमने वैल्यूज गेट की, नोड नेम की और इनर HTML सेट कर दी. ऑन द राइट साइड यू कैन सी द आउटपुट. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया. So you have to look at it by yourself. इसकी एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. तो in the HTML part you can see there's a div. Inside this div we have got two elements H1 and P, which are similar to the one we have seen in the recent slides. And the script part, in the script part we have selected two elements because we have to use previous and next element sibling. ठीक है, तो हमने पहले H1 का कंट्रोल गेट किया क्योंकि इसकी ID टाइटल है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट में हमने P का कंट्रोल गेट किया क्योंकि इसकी ID हिंट है. ठीक है, फिर हमने टाइटल को यूज करते हुए नेक्स्ट सिबलिंग डॉट नोड नेम गेट किया, और हिंट को यूज करते हुए हमने प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग डॉट नोड नेम गेट किया. ठीक है, तो जब आप पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसका प्रीवियस सिबलिंग H1 है. ठीक है, और जब आप H1 के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट सिबलिंग इज द पैराग्राफ. ठीक है, so that's what it has shown on the right side as well in the sample example. ठीक है, hopefully you've got an idea. अगर तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. सर अगर मेन का नेक्स्ट सिबलिंग हम देखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है?
हाँ नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद ये पी एलिमेंट सिबलिंग एलिमेंट, हाँ हाँ ये पैराग्राफ नहीं है, पी विद आईडी FEC ये रिटर्न होगा। सर इसमें ये चीज़ पूछनी थी कि कब दो वाइट स्पेसेस बनती हैं, जब हम दो एंटर दबाते हैं फिर दो वाइट स्पेसेस बन जाती हैं। आई डोंट थिंक कि ये उसको जितनी भी वाइट स्पेस है उसको एक ही नोड कंसिडर करता है। ठीक होगा सर। बेशक आप एक सिंगल टैब से कर दें, एक सिंगल ये जो डेस्क स्पेस होती है सॉरी ये जो टैब होती है नीचे उससे कर दें, या जो एक टैब का लेफ्ट साइड पर टैब होता है जो कि 4 स्पेसेस इंसर्ट करता है उससे कर दें। मेरा ख्याल है कि सबको एक ही नोड कंसिडर करता है। ठीक है सर। बल्कि करता ही एक है, वन अदरवाइज वो मीनिंगफुल है ना, मीनिंगलेस है सॉरी। मल्टीपल वाइट स्पेस को वैसे कंसिडर करना तो ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द स्कीमा, लेकिन अगर मल्टीपल स्पेसेस को वो इस तरह कंसिडर करेगा तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द वे कि यूज़र को अगर खुद आइडिया नहीं है कि उसने कितनी स्पेसेस ऐड की हैं, तो इट विल डिस्टर्ब द बेसिकली अगर आप नेविगेट कर रहे हैं तो आपकी वो नेविगेशन को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा। तो सर सारी वाइट स्पेस होगी वो एक ही टेक्स्ट एक हाँ, ही मतलब एक एलिमेंट कंसिडर। हाँ जी एक एलिमेंट कंसिडर। ठीक होगा सर। ठीक है, आप जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप इस H1 को भी इस ऊपर वाली रो पे मूव कर दें। सिंगल रो में ना ये सारा बेसिकली आप डिव प्लेस कर दें सिंगल रो के अंदर, फिर देखें आपको वो जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है और नेक्स्ट सिबलिंग है ये दोनों सेम बिहेव करेंगे, बिल्कुल सिमिलर बिहेव करेंगे क्योंकि वाइट स्पेसेस रिमूव हो गए। ठीक होगा सर। ठीक है, अच्छा अब अनलाइक द डिसेंडेंट्स एंड द एंसेस्टर्स, सिबलिंग के अंदर आपके पास कोई कलेक्शन अवेलेबल नहीं है इन द प्लेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें आपके पास कलेक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप jQuery लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ना उसके अंदर बेसिकली देयर आर मोर सेट ऑफ मेथड्स विच प्रोवाइड यू विद द कलेक्शन एज वेल। तो जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, लेकिन सिबलिंग्स की कलेक्शन नहीं है, विच वाज द केस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। जब हम jQuery करेंगे तो फिर मैं आप इसको रेफर बैक करके आपको उसके मेथड समझाऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज द DOM मैनिपुलेशन या एडिटिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो एट पार्ट ऑफ दिस बेसिकली टॉपिक you can add, remove or replace HTML elements at the runtime using JavaScript. ठीक है, for that purpose you have got 3 category of functions. First category of functions create new element nodes. So for example, if you have to add new element, first you have to create that element. For example, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर 2 लिस्ट आइटम है और आपने जावास्क्रिप्ट से 3rd लिस्ट आइटम ऐड करनी है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज कि पहले आप li एलिमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उस एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई 1 2 था तो इसके अंदर 3 सेट करेंगे। फिर इस नोड को जो कि न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट है इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब अपेंड करने से तो सबसे दैट अगेन देयर द क्वेश्चन कि whether you have to add this list item at the end of the list items or at the start of the list items or at somewhere in between the list item, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दिस लिस्ट आइटम। तो जो पॉइंट नंबर 1 में क्रिएट न्यू एलिमेंट नोड्स हैं, इट बेसिकली हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है क्रिएट एलिमेंट, इट बेसिकली क्रिएट्स अ न्यू एलिमेंट नोड। ठीक है, तो क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो इससे आपके पास अगर आप इसको व्यू करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा अभी, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर देगा विदाउट एनी टेक्स्ट इनसाइड इट। तो आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो देन यू हैव टू यूज सेकंड मेथड विच इज क्रिएट टेक्स्ट नोड। आप सेपरेटली टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने जो भी टेक्स्ट ऐड किया, फॉर एग्जांपल बीफ, ठीक है, बीफ ऐड कर दिया और आपके पास ये 2 सेपरेट एलिमेंट्स आ गए। एक आपके पास empty list item आ गया और एक आपके पास text node आ गया। Then you have to add this text node inside this empty element like this one beef, which is the list item. For that purpose you have to use the append child. इसके लिए आप append child करेंगे यूज। ठीक है, इसको append कर देंगे इसके अंदर। फिर आपके पास ये list item आ गया along with the text node. Then you have to add this list item in the existing HTML. For example, unordered list के अंदर। So for that purpose again, if you have to
add this list item at the end of the existing list item, then you will use the append child method again. But if you have to add at some other place other than the end of the list, for example दोनों list items के दरमियान में ऐड करने या दोनों list items के start पे ऐड करने, then you have to use insert before method. So then you have to get the control of some existing list item, and then using the insert before you have to insert the element before that particular list item. ठीक है. और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आपने किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट आइटम को रिप्लेस करना हो विद दिस न्यूली क्रिएटेड लिस्ट आइटम विच इज द बीफ, देन यू हैव टू यूज द रिप्लेस चाइल्ड मेथड. ठीक है. तो ये तीनों मेथड्स इसलिए यूज होते हैं एज पार्ट ऑफ द थर्ड बेसिकली पॉइंट which says removing element nodes from DOM. Inside this you have got two methods, for remove child and remove. जो remove child method है ये बेसिकली पेरेंट का कंट्रोल गेट करने के बाद चाइल्ड को रिमूव करता है. ठीक है. तो इसमें आपको पहले पेरेंट का कंट्रोल गेट करना है, फिर पेरेंट के कंटेक्स्ट में आप लिखेंगे पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड और फिर चाइल्ड का रेफरेंस. जबकि जो आपका लास्ट सिंपल रिमूव मेथड है, इट विल रिमूव एनी ऑफ द नोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट. आप किसी भी फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम का कंट्रोल गेट करेंगे और उसको इंडिपेंडेंटली रिमूव कर देंगे विदाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट, विदाउट गेटिंग द कंट्रोल ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. तो ये आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं एज पार्ट ऑफ द DOM मैनिपुलेशन विद इन द प्लेन जावास्क्रिप्ट. और अगेन जो आप जब आप jQuery लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसमें इसके करस्पॉन्डिंग मेथड्स भी होंगे और कुछ फिर वेरिएड सेट ऑफ मेथड्स भी होंगे. ठीक है. होपफुली यू गॉट एक रफ आइडिया अबाउट दिस. In the subsequent slide we are going to look at the examples which will give you a more detailed idea. ठीक है. कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते. ठीक है. चलो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. So how to use the create element and create text node. ठीक है. तो आपको जो लैब सेशनल था वो यहाँ पे क्लास सेशनल सॉरी, उसमें आप लोगों ने एक ही सोल्यूशन था जो कि बड़ा रिपीट हुआ है, मैं भी मार्क कर रहा हूँ. तो उसमें आपने इन मेथड्स को यूज़ करके जो टेबल था उसके अंदर रोज़ को ऐड किया था ना. तो आई अज्यूम कि आप इनर HTML को यूज़ करेंगे ना. इनर HTML से भी आप अपेंड कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमने कवर ही नहीं किया था. आपने मुझे नहीं आइडिया कि आपने कहाँ से इसको देख के और इसको बेसिकली यूज़ किया था ना. तो इनर HTML जो प्रॉपर्टी है ना ये भी आपको अपेंड करने में हेल्प करती है. प्लस इक्वल टू आप इसे अपेंड करें ना लूप से, तो ये भी आपको वही बिहेवियर देती है और आपके टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर देती है जो कि आपने उसके अंदर क्रिएट एलिमेंट से किया था. और फिर उसको काफ़ी लोगों ने इसको रीयूज़ किया है. और लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने खुद से क्रिएट करने की कोशिश की और कुछ लोगों ने इनर HTML को यूज़ किया है और कुछ ने और डिफरेंट तरीकों को यूज़ किया लेकिन खुद से किया. सो आई अप्रिशिएट दैट कि आप खुद से करें लेकिन अपनी जो माइंड है उसको अप्लाई किया करें. ठीक है. ये तो हमने कवर ही नहीं किया था, तो मैंने क्वेश्चंस वही दिए थे जो कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे आंसर कर सकें. ठीक है. सो एनीवेज मुझे तो याद आ गया. तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड्स बेसिकली दीज टू आर द मेथड्स. So how to create an element? Basically var a new li document dot create element और उसके अंदर आप जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है उसको आप नेम मेंशन करेंगे. ठीक है. li means that empty list item. तो अगर आप इसको console.log के अंदर व्यू करेंगे so it would be like this one. आप log के अंदर देखें तो एक empty list item क्रिएट करेगा this one जो कि फर्स्ट हुआ. फिर आपने document dot create text node एक टेक्स्ट नोड क्रिएट किया और console.log के अंदर अगेन उसको व्यू किया. सो दिस इज बेसिकली अ प्लेन टेक्स्ट. अब आपने इस टेक्स्ट को इस नोड के अंदर ऐड करना है. फॉर दैट पर्पस यू यूज द अपेंड चाइल्ड. ठीक है. तो आप ये करेंगे कि न्यू li जो कि आपने ये जो न्यू li क्रिएट किया लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड और इसके अंदर आप जो टेक्स्ट नोड आपने क्रिएट किया न्यू कंटेंट उसको पास करेंगे. तो आपके पास ये एक मेमोरी में अगर आप इसको बेसिकली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास मेमोरी में इस फॉर्मेट में न्यू लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएगा. li दिस इज न्यू li और फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग. लेकिन ये इंडिपेंडेंटली पड़ा हुआ है और आपने इसको
लिस्ट आइटम इसके अंदर ऐड करना है, फिर अगेन यू आर गोइंग टू यूज अपेंड चाइल्ड एट दैट पर्पस, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्क्राइब करूँ. सो इन हाउ टू यूज अपेंड चाइल्ड मेथड, फॉर दैट पर्पस यू जस्ट लुक एट द सिंटैक्स, ठीक है. ये ऊपर टेक्स्ट है, ये आपने खुद रीड करना है इसको, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर. सिंटैक्स पार्ट में देखें पेरेंट नोड डॉट अपेंड चाइल्ड और न्यू नोड, ठीक है. अब हम नीचे के एग्जांपल में आए तो आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 2 लिस्ट आइटम्स हैं, बाय ग्रोसरीज एंड फीड द कैट, ठीक है. स्क्रिप्ट पार्ट में आपने वही स्टेटमेंट्स हैं, पहली 2 तो जो कि आपने लास्ट स्लाइड में क्रिएट की, एक लिस्ट आइटम क्रिएट किया और एक टेक्स्ट नोड क्रिएट किया. फिर न्यू li डॉट अपेंड चाइल्ड करने से आपके पास इस तरह का एक न्यू लिस्ट आइटम आएगा. दिस इज न्यू li और इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है. अब ये तो एक इंडिपेंडेंट लिस्ट आइटम है ना, आपने इसको जो आपके पास HTML है उसके अंदर इसको ऐड करना है एज अ थर्ड लिस्ट आइटम, ठीक है. सो फॉर दैट पर्पज यू विल गेट द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट फर्स्ट. सो पेरेंट UL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और उसके अंदर आपने पास किया UL. सो दिस बेसिकली स्टेटमेंट विल रिटर्न द फर्स्ट मैचिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट इन योर HTML और उसका कंट्रोल सेंड कर देगी पेरेंट UL में. अगेन आपने यूज किया पेरेंट UL डॉट अपेंड चाइल्ड और न्यू li, ठीक है. तो ये न्यू li आपने क्रिएट किया, दिस वन, दिस विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो ऑन द राइट साइड यू कैन सी बाय ग्रोसरीज एंड फीड द कैट के बाद एक आपके पास और एलिमेंट आ गया, दिस इज न्यू li. तो नाउ बेसिकली यू कैन अपेंड द एलिमेंट. तो आप टेबल के अंदर भी इस तरह कर सकते हैं जैसे आप में से कुछ लोगों ने क्लास सेशन के अंदर किया, ठीक है. होपफुली आपको आइडिया होगा. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. So then a sister basically sister method of this append child is the insert before. Append child तो हमेशा at the end of the existing जो आपके पास एलिमेंट्स है उसके किसी भी पेरेंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है ना उसके सबसे एंड पे इंसर्ट करेगा. लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे करना है देन यू हैव टू यूज दिस इंसर्ट बिफोर मेथड. बट अगेन यू हैव टू रेफर द पेरेंट एज वेल. सिंटैक्स में देखें आपने पेरेंट नोड डॉट इंसर्ट बिफोर, ठीक है मेथड. लेकिन इस मेथड के अंदर आपके पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, नॉट द सिंगल आर्गुमेंट. न्यू नोड जो आपने इंसर्ट करना है और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो नेक्स्ट सिबलिंग जिस नोड से पहले इंसर्ट करना है, ठीक है. तो अपेंड चाइल्ड में आपके पास सिर्फ एक ही आर्गुमेंट जबकि इसमें आपके पास 2 आर्गुमेंट्स. तो HTML सेम है जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाई है, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, ठीक है. और स्क्रिप्ट के अंदर हमने फर्स्ट जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमने नोड क्रिएट किया, फिर जो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमने पेरेंट का कंट्रोल गेट किया यूजिंग क्यूरी सेलेक्टर और फिर सिबलिंग का कंट्रोल गेट किया यूजिंग पेरेंट डॉट चिल्ड्रन ऑफ 1. सो इट विल रिटर्न द कंट्रोल ऑफ द सेकंड चाइल्ड, ठीक है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ठीक है. तो पेरेंट UL डॉट चिल्ड्रन ऑफ 1 इट विल रिटर्न द कंट्रोल ऑफ द सेकंड चाइल्ड. उसके बाद पेरेंट UL डॉट इंसर्ट बिफोर न्यू li और करंट li विच इज अ सिबलिंग नोड. तो राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सेकंड एलिमेंट था उससे उसने पहले इंसर्ट किया, ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन यूज द इंसर्ट. होपफुली आपको आइडिया होगा. यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी. इसी तरह रिप्लेस चाइल्ड का मेथड है. तो अब ये एक काइंड ऑफ सीक्वेंस में चीज़ें हैं ना. जब आपको एक कैटेगरी ऑफ मेथड्स का समझ आ गया तो फिर उसके बाद कैटेगरी के अंदर मल्टीपल अगर मेथड्स हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं, ठीक है. तो ये भी बेसिकली अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर की तरह रिप्लेस चाइल्ड का मेथड है विच इन इटसेल्फ इज डिस्क्रिप्टिव. रिप्लेस वर्ड जो है वो भी आपको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है. लेकिन इसका सिंटैक्स देख लें. इसमें पेरेंट नोड को आपने रेफर करना है डॉट रिप्लेस चाइल्ड, न्यू नोड और एग्जिस्टिंग नोड जिसको आपने रिप्लेस करना है विद दिस न्यू नोड, ठीक है. एग्जांपल जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स इन द स्क्रिप्ट क्रिएट्स द न्यू लिस्ट आइटम. देन नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट गेट द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट. Second statement is exactly similar to the last. Basically, it gets the control of the second list item within the unordered list, and then replace child replaces the second element with the new element. And on the right side, you can see
कि आपके पास दो ही लिस्ट आइटम्स हैं विच वर इन द केस ऑफ स्टैटिक एचटीएमएल, ठीक है। लेकिन सेकंड लिस्ट आइटम जो कि फीड द कैट थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद दिस न्यू लिस्ट आइटम। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू यूज द रिप्लेस चाइल्ड मेथड, ठीक है। इसके बाद रिमूविंग एलिमेंट नोड्स फ्रॉम डॉम, तो आप नोड्स को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके यू माइट बी थिंकिंग व्हाई दीज बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन मेथड्स आर देयर ना। तो इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने पहले भी आपको हिंट दी थी, अगेन मैं आपको दे रहा हूँ, कैन बी द शॉपिंग कार्ट एंड दैट शॉपिंग कार्ट इज टू बी मेंटेन ऑन द क्लाइंट साइड विदाउट सेंडिंग एनी रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो शॉपिंग कार्ट क्या होता है, आपके पास एक टेबल ही होता है, टेबल के अंदर आपके पास रोज होती हैं, रोज के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आइटम है उसका सीरियल नंबर है, फिर आपके पास नेम है, फिर आपके पास उसकी प्राइस है जो कि, और फिर उसके बाद ऑप्शन, उसमें डिलीट का ऑप्शन भी इन सम केसेस होता है, ओवर द वेब आपने देखा होगा। तो जब यूज़र आता है और शॉपिंग कार्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करता है तो इन अ वे आप इस टेबल के अंदर रोज़ को ऐड करते हैं अलॉन्ग विद दिस सीरियल नंबर, नेम, प्राइस एंड दिस डिलीट बटन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल उसने 3 आइटम्स को ऐड किया तो आप अपेंड चाइल्ड को यूज़ करेंगे फॉर अपेंडिंग द आइटम्स इन द कार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लेटर ऑन यूज़र फेल्ट के नहीं, मैंने जो सेकंड आइटम है इसको बेसिकली मैंने बाय नहीं करना, तो ही विल क्लिक ऑन द डिलीट बटन, देन यू विल ओपन confirm dialog box for the consent of the user. For example, would you like to delete this item because ये remove हो जाएगी, तो फिर यूज़र कहेगा yes, तो फिर आप सेकंड रो को रिमूव कर देंगे। दिस सेकंड रो इज बेसिकली द चाइल्ड ऑफ द टेबल। जब आप HTML देखें अगर, तो आपके पास टेबल टैग के अंदर रोज ही होती है ना, TRs, तो दीज आर बेसिकली TR, सेकंड TR इज द चाइल्ड ऑफ द टेबल। तो यहाँ से आप इस जाएंगे और TR को उस टेबल के अंदर से रिमूव कर देंगे। तो जावास्क्रिप्ट से आप बेसिकली इस टेबल को एडिट कर रहे होंगे। तो जो रिमूविंग का प्रोसेस है, यू माइट बी यूजिंग दिस रिमूव चाइल्ड मेथड फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट के अंदर रिप्लेस का तो एज सच ऑप्शन नहीं होता, एडिंग एंड रिमूविंग का ऑप्शन होता है। तो अपेंड चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड, दीज टू मेथड्स कैन बी यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट। इसके अलावा और भी सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें आप ये डॉम मैनिपुलेशन की फंक्शनलिटी को यूज़ करें, ठीक है। बट हाउ टू यूज द रिमूव चाइल्ड, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। पहले आप सिंटैक्स देख लें विच इज डिस्क्राइब्ड इन द पॉइंट नंबर 2 विच सेज पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड एंड देन चाइल्ड। तो पेरेंट नोड का भी आपने कंट्रोल गेट करना है और उसके अंदर चाइल्ड नोड का भी कंट्रोल गेट करना है। So in the example part you can see another list with 2 list items. In the script part, first of all we have selected the parent, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना तो हमारा कोड सिंप्लीफाई हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर से हमने फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट किया और पेरेंट यूएल के अंदर उसका कंट्रोल सेव किया, ठीक है। और फिर पेरेंट यूएल डॉट चिल्ड्रन ऑफ 1, सेकेंड जो चाइल्ड है उसको सेलेक्ट किया, उसका कंट्रोल चाइल्ड के अंदर सेव किया, और फिर पेरेंट यूएल डॉट रिमूव चाइल्ड और चाइल्ड को अंदर पास कर दिया, ठीक है। एंड देन यू माइट बी थिंकिंग कि अगर मैं क्यूरी सेलेक्टर ऑल यूज़ कर लूँ, so whether it will delete the second child of all the unordered list, so that won't be the case, ठीक है। उसमें आपको लूप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिमूव चाइल्ड का मेथड है, इट विल डिलीट ओनली इन द फर्स्ट बेसिकली एलिमेंट चाइल्ड जो हमने क्यूरी सेलेक्टर यूज़ किया, अदरवाइज वो सारे के सारे एलिमेंट्स को खुद ब खुद ट्रैवर्स करके रिमूव नहीं करेगा। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो रिमूव चाइल्ड इज द मेथड फॉर दैट पर्पस, फॉर रिमूविंग द चिल्ड्रंस एट द रन टाइम। होपफुली आपको आइडिया होगा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ। नेक्स्ट मेथड इज द सिंपल रिमूव मेथड, एंड एज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स यू कैन सी दैट in this basically method you don't have to get the access of the parent, you simply have to use the node dot remove। जिस नोड को रिमूव करना है उसका कंट्रोल गेट करें और नोड को रिमूव कर दें। इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड, फॉर एग्जांपल हो सकता है उसके चिल्ड्रन भी हो ना, तो वो सारे के सारे चिल्ड्रन भी रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिव है और डिव के अंदर पैराग्राफ्स हैं, आपने फॉर एग्जांपल डिव का कंट्रोल गेट किया और नोड डॉट रिमूव का मेथड कॉल कर दिया, तो ये जो पैराग्राफ्स हैं सारे के सारे ये भी
बाय डिफ़ॉल्ट ही रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इनका पेरेंट ही रिमूव हो गया, दैट्स वाई। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास वही अवेलेबल है जो कि हमने रिसेंट एग्जांपल्स में देखी है। स्क्रिप्ट पार्ट में आपने कितना सिंप्लीफाइड हो गया देखिए, जस्ट हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ किया, ul स्पेस li, so this will select first list item out of the first unordered list। तो आपके पास जो HTML के अंदर जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट होंगी उसके अंदर फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में से फर्स्ट लिस्ट आइटम को सेलेक्ट करेगा और उसका कंट्रोल इस वेरिएबल चाइल्ड के अंदर सेव कर दो। फिर उसके बाद आपने चाइल्ड डॉट रिमूव किया तो उस पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को रिमूव कर दो। ऑन द राइट साइड यू कैन सी कि आपके पास जो बाय ग्रॉसरीज फर्स्ट लिस्ट आइटम था दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन यूज द रिमूव मेथड। तो आपका जो लैब सेशनल है ना, लैब सेशनल टूल विच इज टुमारो ना, दैट इज अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, बेसिकली ये लेक्चर भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। और तो लैब सेशन हम किस तरह करेंगे, बेसिकली आपका 3 आवर्स का स्लॉट है। फर्स्ट 2 आवर्स में मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप आंसर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डॉम इवेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो डॉम इवेंट्स हमने पढ़े हैं, डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स के क्रॉस इवेंट्स पढ़े हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन इनपुट। ठीक है, तो देयर विल बी सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि आप जिनके आंसर्स खुद से राइट करेंगे। तो फर्स्ट 2 आवर्स विल बी द प्रॉपर लैब होगी। ठीक है, जिसमें हम डॉम और उससे रिलेटेड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन द लास्ट 1 आवर, आखिरी घंटे में आपका लैब सेशन होगा। ठीक है, सो टू अटेंड द बेसिकली फर्स्ट 2 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पहले 2 घंटे अटेंड करेंगे तो फिर आपको एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी विच विल बी हेल्पफुल इन द लैब सेशन। ठीक है, और लैब सेशन में आपका डॉम नेविगेशन और मैनिपुलेशन तक होगा जो कि आज हमने देखा। तो यहाँ ये भी आपने मेथड्स थोड़े से एग्जीक्यूट करके खुद से ओवर द वेब देख लेंगे। ठीक है, ओवरनाइट, ताकि आप ये प्रैक्टिस होगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, so that's all in today's lecture. In today's lecture we have covered 2 important topics, that is about DOM navigation and DOM manipulation. As part of the DOM navigation we covered node relationships, and then using the node relationships we added, basically we traversed ancestor nodes, descendant nodes and the sibling nodes. And in the DOM manipulation part we added new nodes, removed the existing nodes and replaced the existing nodes. Okay, so hopefully it was beneficial for you and you have understood it completely. तो इन चीज़ों को अगर कोई कंफ्यूजन है अभी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से प्रैक्टिस करें और टुमारो इसके लिए रेडी है। ठीक है।